We have with us Mr. Virender K. Jetli, who is an educationist and an engineer by profession, and these days is running his own educational consultancy for educational institutions and corporates with the name Success Mantra. So welcome, sir. Welcome to PPU Hisar and to Mera Desh channel. सर आपसे कुछ सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं रिगार्डिंग वेरियस मोटिवेशनल फैक्टर्स, वेरियस एजुकेशनल मेथड्स, तो जो आपने रिसर्च किया है और जो आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाकर दे रहे हैं, तो जैसे आप फीडबैक भी लेते रहे होंगे, तो किस तरह का आपको लगता है कि फ़ीडबैक आता है और कितना बेनिफिट वो ले सकते हैं, और अगर वो बेनिफिट पूरा नहीं ले पा रहे तो उसके लिए आगे क्या करना चाहिए? वेरी गुड। देखिए, मेरे विचार से हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों में हायर एजुकेशन हैज़ मशरूम्ड, और अगर आपने NASSCOM की स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा हो कि NASSCOM says only 25% of the Indian engineers are employable and 75% are not employable. Now ये एक बहुत ही बड़ा गैप है between what the industry expects and what the educational colleges are producing. So इसकी गहराई तक जाने के बाद we have realized कि there are 3 levels which have to be improved. Students, definitely their level has to go up, but then how it will go up? Provided the level of the teachers who are teaching them, that also goes up, and the teachers are being supported by the college management, the senior management. So we have to work at all the 3 levels, and we started working with the higher management also. Like, I am a convener of a center called Center for Professional Counseling with Mahamaya Technical University. So we conducted a seminar on excellence in education there, and lot number of chairmen also came there. Idea is to sensitize the people at the chairman level, the directors level, that they have created such beautiful infrastructure, but they have to devote some time also to listen to the problems of the colleges and to ensure that they get the best of facilities. And the next level is the teachers. Now the teachers have to be groomed also over a period of time. Like I saw today, most of the teachers are very, very young here. Even young teachers, they become good teachers and great teachers over a period of time. Today they are probably immature teachers, some of them. Now we have to groom them. And this industry cannot be compared with the normal industry where you have an assembly line type of thing and you keep shutting people out. Here the students have to be nurtured. The teachers also have to be nurtured. Like if farmer nurtures his nursery, उसी तरीके से इन teachers को भी हमें nurture करना है over a period of time. They will become real great teachers. Students को भी nurture करना है over the period of 4 years, for example. They can become good students. And this impact has to start from the day one they join the college. So I say, जब बच्चों का orientation program होता है, जब नया बच्चा कॉलेज में आता है फर्स्ट ईयर में, उस टाइम उसको पूरा 1 वीक डिवोट किया जाए, ताकि उसी टाइम पे उसकी जो फाउंडेशन है, व्हाट ही इज़ एक्सपेक्टेड टू डू ओवर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 4 years, उसको उसी टाइम बता दिया जाए. He has to switch over from a 10+2 mentality to a college mentality, from a hand holding by the teacher to a self-learning individual he has to become over a period of when he comes to the college. इस टाइप की भावना हमें बच्चों के दिमाग में डालनी है, टीचरों के दिमाग में डालनी है, और सीनियर मैनेजमेंट के भी दिमाग में डालनी है कि वो तीनों लेवल पे पूरा का पूरा ध्यान दें, तभी ये हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है इट कैन रियली इम्प्रूव ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. So how far the colleges, their various levels of management are receptive to your ideas? देखिए जी, मैं कहूँगा What is the variation in the कुछ perception? जगहों पे जो सीनियर मैनेजमेंट है, पर्टिकुलरली ओनर्स ऑफ द कॉलेजेस, आई विल से जो चेयरमैन है मान लीजिए, उनका डे टू डे बेसिस कॉलेजेस से कोई इतना लगाव नहीं है. दे हैव लेफ्ट इट टू दी सो कॉल्ड डायरेक्टर फॉर एग्जांपल. कुछ जगहों पे डायरेक्टर्स को उन्होंने 100% फ्रीडम दिया, दैट इज गुड, बट कुछ जगहों पे उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दिया लेकिन अथॉरिटी नहीं दी, तो यहाँ पे दैट्स अ प्रॉब्लम. So if you give lot of responsibility to your director, you got to give him full authority also. And then yes, you be the chairman and you be the funder if required. You take your profits and all that. But you are conducting various courses, where various lectures and all that and trainings.
So, did you ever try to measure the impact of your educational technologies? देखिए जी, इट इज़ आई विल से इट्स ए बिगनिंग. सो उसका इम्पैक्ट जो है कोई इतना, ये चीज़ें ऐसी होती हैं इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं आता. जी. जैसा कि मैंने बोला कि इट्स लाइक ए नर्सरी. जैसे फार्मर अपने ग्रूम करता है अपने प्लांट्स को, धीरे धीरे वो नर्चर करता है, उसी तरीके से जो हमारा एफर्ट है, आई विल से इट इज़ जस्ट द बिगनिंग. इसके रिजल्ट्स आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह है कि इट इज़ शोइंग कि इट इज़ क्रिएटिंग इट्स इम्पैक्ट. फॉर एग्जाम्पल यूपी के अंदर महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रोबेबली पहली बार देयर आर 400+ कॉलेजेस. हमने इंटर कॉलेज लेवल के ऊपर एक डिबेट कंपटीशन करवाया बच्चों का, उनका एक पेपर प्रेजेंटेशन कंपटीशन करवाया, क्विज कंपटीशन करवाया, एंड वी वर सरप्राइज्ड कि कॉलेजेस से सिलेक्ट हुए बच्चे, उनके क्लस्टर लेवल पे कंपटीशन हुए, फिर जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जो बच्चे आए, देयर स्टैंडर्ड वाज सो गुड. वी फेल्ट वेरी हैप्पी कि ऐसी यूनिवर्सिटी में भी इस टाइप की प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं. आई एम श्योर इवन इन हरियाणा आल्सो, फॉर एग्जांपल इन दिस यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज PTU और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जी एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा आल्सो, जहाँ पर भी एक से एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं. We should have inter-college level of competitions in various areas here also. I don't know whether they are being held or not. They are held, but the seriousness May not be there that may much. not be there. Yes. Probably- They may be taking as another Yes, activity. Correct. Now, such students who win at this level, they should be given good amount of media publicity also by channels like yours, मेरा देश, कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट आया पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पे, पेपर प्रेजेंटेशन में, क्विज में या किसी गेम में भी. उनको जब एक माइलेज मिलेगा मीडिया के ऊपर, तो इट बूस्ट्स देयर मोरल एंड इट इंस्पायर्स द अदर स्टूडेंट्स आल्सो टू पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज. So, do you think that the lack of seriousness in students for developing their personality more or less results from a lesser interest of colleges in their development? देखिए जी, मैं तो स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के लिए ब्लेम नहीं देना चाहूँगा, टू बी वेरी फ्रैंक. मैं कहता हूँ अगर कोई ब्लेम अगर किसी को देना भी है तो हमारे सिस्टम की कुछ हद तक फॉल्ट है. फिर नेक्स्ट लेवल गोज टू द सीनियर मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट लेवल गोज टू द टीचर्स. दीज थिंग्स परकोलेट फ्रॉम टॉप टू डाउन. स्टूडेंट इज़ लाइक ए कच्चा घड़ा जिसको बोलते हैं, उसकी तरह है. इट इज़ टोटली अपॉन अस हाउ वी मोल्ड हिम, एंड वी हैव गॉट फुल 4 years, और इन केस हमें भी फुल 2 years टू मोल्ड हिम. अगर फिर भी हम उसको मोल्ड नहीं कर पाते तो इसमें ये हमारा फेलियर है, मैनेजमेंट का फेलियर है, टीचर्स का फेलियर है, स्टूडेंट्स का फेलियर. मैं इसको नहीं मानता. So, what is your message to students? My message to the students will be that in your life have a passion to do well in your life. Whatever you resolve to do, whichever field you want to go, have a passion for that and work in that direction with full commitment, with full josh, with full energy and enthusiasm, and you will achieve what you want to achieve. That's my message. And how best the institutions and parents can implement various programs as per your experience and suggestions? Teachers and the parents can throw lot many more and more challenges to the students, and I assure you they will come up to those levels. आजकल हमारी मेंटालिटी हो गई है उंगली पकड़ के बच्चों को चलाने की. ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्रीडम दीजिए कुछ करने की, and they will stand to that level. I'm sure. Give them the freedom to do what they want. Can you suggest 5 to 10 activities which the students can be given to develop their personality, their various skills? If you can give just in short some activities to students. देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर एक इनोवेटिवनेस और क्रिएटिवनेस की भावना जो है वो आनी चाहिए, कि जो भी काम प्रेजेंट किसी तरीके से किया जा रहा है, कैन इट बी इम्प्रूव्ड अपॉन यूजिंग टेक्नोलॉजी या यूजिंग बेटर प्रोसेसेस. तो एक इनोवेटिव थिंकिंग जो है वो दिमाग में आनी चाहिए. दूसरा, हमारे बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के साथ साथ उनको उस एरिया का नॉलेज भी अधिक से अधिक ग्रहण करना है. वंस दे डू दैट, दे हैव एक्वायर्ड द नॉलेज. और मैं पहले कह चुका हूँ, एटीट्यूड का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन स्किल मैंने कह दिया, इनोवेटिव क्रिएटिविटी मैंने कह दिया.
इन सब के साथ साथ अपने आप को प्रेजेंट करना ऑल्सो इन ए डिसेंट वे, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग बड़ा ढीलापन दिखाते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, जैसे कि बालों को कंघी नहीं किया, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, थोड़े से लवजी बन के चले जाते हैं। आजकल के ज़माने में एक ग्रूमिंग आल्सो हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन ए डिसेंट वे, द फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट्स ए वेरी बिग थिंग। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा। इफ़ दे डू इट, आई विल से सक्सेस जो है वो अपने आप उन पे चरम चूमेगी और वो आगे बढ़ते रहेंगे। Thank you, Mr. Jetli, for talking to Mera Desh channel and your visit to PPU Hisar, and we hope to talk to you in future also. Thank you, Sure. sir. Thank you very much. Thank you.